Welcome to one and all. We started with the chapter Instruction Set of 8085 from CS to 12th standard, and we completed all the groups of instructions which are important for your board and your microprocessor programming of 8085. Okay, next thing or the next step for microprocessor programming is the instruction interpretation. Means what? This is really your basic step. Means after your instruction, this is really very important step that how to read this instruction one by one. Okay, in any kind of programming, if you are having number of lines or number of commands, then how to interpret the meaning one after the another. Okay, so we'll compile basic small code, okay, by which you will get the way that how to compile the program, and you will able to understand the microprocessor programs for 8085, okay, which are really important for your board exams. Okay, so this is the first problem we are solving here. See, in microprocessor programming also we'll have number of steps like this. Okay, so first of all we'll learn that how to compile these steps, then only you will able to understand the microprocessor programs. Okay, and sometimes in board also such kind of steps are given and they will told you to find out these values. Okay, so 5 values if you have to find out, then it will be for 5 mark. Okay, so in board also it came number of times that compile the given code. Okay, so that you will get these values, and for these values you will have 5 marks. Okay, so this is a very basic step to compile your program. So this is your problem number 1. MVI A,05H, move A, B, move C, A, LXI H F005, move B, C and HLT. HLT means halt. ओके, यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो रुक गया है. और इनपुट में क्या दिया है? इफ वैल्यू ऑफ बी इज 65, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एच एल. ओके, सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी स्टेप. तो इसमें क्या होगा, इनडायरेक्टली आपका जो मैंने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ाया है वो यहाँ पे यूजफुल होगा. क्लियर? तो यहाँ पे आपको वो इंस्ट्रक्शंस पहले से ही प्रिपेयर करना है जिससे आपके लिए ये कंपाइलेशन इजी हो जाए. सो लेट्स सी. So see here, MVI A,05, then in this is from data transfer group. Okay, ये मैंने already बताया है. So value of A will be 05, means ये जो 05 है ये कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? A में. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? A का वैल्यू एज 05. ये मिल गया हमें एक वैल्यू. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट को कंपाइल किया तो क्या हो रहा है? सेम वे मूव ए कॉमा बी, मीन्स बी की वैल्यू को ए में मूव करो. ओके, और इसका क्या मीनिंग था? मूव इमीडिएट, मीन्स इमीडिएट डेटा को ए में मूव करो. तो बी की वैल्यू क्या है? यू कैन सी हियर 65. ओके, तो 65 को ए में मूव करो. सो अगेन हमारा अब ए चेंज हो गया, मीन्स एक्यूमुलेटर चेंज हो गया. नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 65. Clear? Now move C, A. These are the statement just for compilation. Okay, कि आप कैसे प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो, कैसे उसका मीनिंग समझ सकते हो. सो हियर यू आर गेटिंग दैट A के वैल्यू को C में मूव करना है. सो लास्ट वैल्यू ऑफ A, और हमेशा लास्ट वैल्यू को चेक करना है. ऐसा तो अभी आप सोचोगे A का वैल्यू 05 भी है, ओके, और A का वैल्यू 65 भी है. सो व्हाट वी शुड टेक? सो ऑलवेज टेक लास्ट वैल्यू, जो लास्ट अपडेट हुआ रहेगा. तो लास्ट में क्या है? 65. सो हियर यूजिंग दिस मूव इंस्ट्रक्शन, वैल्यू ऑफ C विल बी 65H. क्लियर? नाउ LXI H, F005 मीन्स व्हाट? लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट. तो यहाँ पे क्या है? पेयर का H है, मीन्स HL अभी कहाँ पे है आपका? HL इज पॉइंटिंग एट
F005। अगर आपको ये कमांड में इशू आ रहे होंगे या नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज गो टू डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ माय लेक्चर्स, ठीक है, और उसमें मैंने ये आपको बताया है दैट व्हाट इज द मीनिंग। सो HL इज पॉइंटिंग एट F005, ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। ओके, सो H का वैल्यू और L का वैल्यू क्या होगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ H, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। ये आपका H है और ये L है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। ओके, ये लोअर बाइट रहेगा, ये हायर बाइट रहेगा। नाउ मूव B, C, इसका क्या मीनिंग है? अगेन C का डेटा B में जा रहा है। डोंट वरी कि पहले तो B का डेटा मिल गया, C का मिल गया, देन why it is changing. Let it be, just compile your commands. Okay, so here value of B will be, क्या हो गया? C की वैल्यू को B में मूव करना है, तो आपके पास B का वैल्यू तो है बट अब ओवरराइट होगा वैल्यू। सो C का वैल्यू इज करंट वैल्यू 65, तो B का भी क्या हो गया? 65। नाउ हॉल्ट मीन्स अब यहाँ पे आपका प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज। यू कैन चेक वैल्यू ऑफ A, B, C, H, L। ठीक है, तो हमेशा आपको लास्ट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू चेक, लास्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लेना है। इफ यू विल थिंक कि A का वैल्यू 05 एंड 65, तो व्हाट वैल्यू वी शुड राइट? सो यू हैव टू राइट दिस 65। ठीक है, B का वैल्यू भी लेटेस्ट कौन सा है? 65, C का 65, H is F0 and L is 05. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन। ये मैंने इसलिए सबसे पहला कोड, सबसे इजीएस्ट कोड लिया है, जिससे एटलीस्ट यू विल गेट कॉन्फिडेंस फॉर कंपाइलिंग योर माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स सी हियर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट A is equal to 05H। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख के भी दिया है। In next statement, you will get value of A as 65. In move C, A, you will get value of C as 65. LXI H, F005. Meaning of this statement is HL is equal to F005, means your H is F0, L is 05. And in last statement, move B, C, B is 65. Okay. So always write final answer in appropriate manner, so that ये compilation तो आपको दिखाना ही है एग्जाम में, बट ऑलवेज शो योर आंसर एट द एंड, दैट आफ्टर दीज थिंग्स और दीज मैनी स्टेटमेंट्स व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एवरी थिंग, द थिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, उसका लास्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ A is 65, वैल्यू ऑफ B is 65, C is 65, H is F0 and L is 05. Okay. So at the end of your code and compilation, give the value of every content which is required for your compilation. ठीक है, ये आपको लिखना है at the end of your code. ठीक है, so this is very much basic code. Please practice this code by your own. ये जो code है आप without going through the video इस code का practice करो. If you will able to compile by yourself, then you are getting the meaning of compilation. Okay, let's see the next one. Next one, if you will go, you will see that this is difficult from the first one. Okay, now the level will increase. Now you have to keep concentration on each and every word or line. ठीक है, so let's start. LXI B, C009. अगेन इसका मीनिंग क्या है? लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, तो पेयर क्या है? B मीन्स BC, BC is C009. what is the meaning? C0 is the value of B always for higher byte and C is for lower byte. ठीक है, LDA C009. what is the meaning? load accumulator. ओके, एट गिवन लोकेशन, तो लोकेशन क्या है? C009. C009 पे क्या वैल्यू है आपका? 50 है, यू कैन सी हियर 50 है। ओके, सो इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है इसको एक्यूमुलेटर में लोड करो। फ्रॉम दिस लाइन यू विल गेट वैल्यू ऑफ A as 50. ओके, इस लाइन को कंपाइल करोगे तो क्या मिलेगा? उसने बोला है लोड द वैल्यू, लोड वैल्यू इन एक्यूमुलेटर, मीन्स इस लोकेशन पे जो भी लोकेशन दिया होगा इस पे जो भी वैल्यू है लोड दैट वैल्यू इन
A. Okay. Now MVI A,06 means move immediate. मूव इमीडिएट, तो ये जो इमीडिएट वैल्यू दिया है, डेटा दिया है, उसको एक्यूमुलेटर में मूव कर दो. नाउ अब एक्यूमुलेटर का लास्ट वैल्यू क्या था आपका 50, बट अभी फिर से चेंज हो गया. नाउ इट इज 06. ओके, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 06. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एड ए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एड ए? ओके, तो इसके लिए आपको डेटा ट्रांसफर ग्रुप देखना पड़ेगा. लिंक इज मेंशन्ड हियर. So if you don't know, please go through the link first. Okay, directly आप ये solve करना मत start करो. So add A का meaning क्या होता है? A is equal to A plus A. अगर add B होता तो A is equal to A plus B. Okay. So latest value of accumulator is 06. So here you will take 06 plus 06. Okay. So I will show you how to solve. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एड ए. मतलब जो भी वैल्यू होगा, मीन्स यहाँ पे तो ए है, ये जो ए है वो हमने यहाँ लिखा है. ओके, इस ए को एक्यूमुलेटर में ऐड करो, जो भी नया आएगा उसे फिर से एक्यूमुलेटर में अपडेट करो. नाउ सी द प्रोसीजर. सी, वी आर गेटिंग 0C. हाउ इट इज, आई विल शो यू. A plus A. So A का वैल्यू क्या है? लेटेस्ट वैल्यू is 06. So I'll write binary for 0. Now binary for 6. Again A. So again A का बाइनरी तो सेम ही है 0 6. Okay. तो 6 का बाइनरी. Now you got. Now you have to add A plus A. Okay. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 0. कैरी 1, ट्रिपल 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा. सो हियर यू विल गेट 1 एंड हियर यू विल गेट 4 times 0. सो व्हाट यू एक्चुअली गॉट, दिस इज द बाइनरी फॉर 0, दिस इज द बाइनरी फॉर C. सो यू गॉट 0C. ओके, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर योर एग्जीक्यूशन आफ्टर एड A. एड A एग्जीक्यूट होगा तो क्या मिलेगा? यू विल गेट 0CH. ओके, सो इसलिए मैंने ये सोल्यूशन बताया दैट हाउ वी गॉट दिस 0C. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप, मूव D, A. व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? कि आपने A का वैल्यू D में मूव कर दिया. A का लास्ट वैल्यू क्या है? 0C. यू विल सी दैट A का वैल्यू तो 50 भी है, 06 भी है, 0C भी है, बट यहाँ पे क्या बोला है? A की वैल्यू को D में मूव करो. सो आपने ये 0C को क्या किया? D में मूव कर दिया. नाउ द वैल्यू ऑफ D इज 0C. ओके, now the next statement for compilation is sub D. What is the meaning or the interpretation for this? That is sub means subtraction. Okay, so इसलिए यहाँ पे subtraction का symbol है. means accumulator में जो भी यहाँ पे डेटा दिया है, मतलब इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे D दिया है तो D का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, accumulator में से D का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है. So what is the last value of D? 0C. What is the last value of A? 0C. Okay. मतलब A में से D का डेटा subtract करना है. Then how to do? If you don't know the procedure, please go through first arithmetic group for subtraction. Okay. Lecture number 2 of arithmetic group. Okay. First, because you have to learn the subtraction steps first, that how to do the subtraction for binary number in microprocessor. ओके, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, लेकिन उसके पहले आप बेसिक स्टेप्स आप देख लोगे तो ज़्यादा सिंपल होगा आपके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन. सब D, व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? A इज इक्वल टू A माइनस D. वैल्यू ऑफ A क्या है यहाँ पे? 0C. दैट इज 4 times 0 1 1 0 0. C का D का वैल्यू क्या है? सेम इट इज 0C. सो यू आर नोइंग दैट कि 0C में से 0C माइनस होगा तो इनडायरेक्टली आपको क्या मिलने वाला है? 0. बट हाउ यू विल गेट, क्योंकि सेम नंबर है. ओके, जैसे 2 minus 2 0 देता है, सेम वे 0C minus 0C भी आपको 0 देना चाहिए. लेकिन कैसे? A plus D dash करना पड़ेगा. बोथ आर इक्विवेलेंट. ओके, D dash मीन 2's complement of D. ओके, D का बाइनरी क्या हो गया है? D is 0C. 0C का बाइनरी है 0 0 0 0
1100. ओके, तो डी डैश मीन्स अब हमें टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो जो भी वैल्यू आएगा डी का उसे हमें एक्यूमुलेटर के वैल्यू में ऐड करना है। ओके, बिकॉज a माइनस डी इज इक्विवेलेंट टू a प्लस डी डैश। ओके, डी डैश इज सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। सो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 0 की जगह पे 1 लिखना है, 1 की जगह पे 0। सो 4 टाइम 0 की जगह पे क्या आएगा, 4 टाइम 1। Here you will get 2 times 0, 2 times 1. Okay, and now for 2's complement you have to add 1 at LSB of 1's complement. Now you will get 2's complement. 1 plus 1, 0, carry 1, 1 plus 1, 0, 0, carry 1. Here you will get 1, 0, and now you will get these 1 as it is. Okay, 4 times 1. So what you got, 4 times 1, 0, 100. This is the 2's complement of D. Okay, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको 2's complement मेथड से ही सब्ट्रैक्ट करना है। और 2's complement किसका होगा, किसका आपको फाइंड आउट करना है, हमेशा जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, D। ओके, तो D का 2's complement आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये मैंने D का 2's complement फाइंड आउट कर दिया। नाउ सी, we got D dash as 4 times 1, 0, 1, 0, 0. Okay, so how to perform it? देखो यहाँ पे अभी एक्यूमुलेटर का 0C था, मैंने 0C का बाइनरी लिखा, ये D डैश का वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इफ वी विल प्रोसीड इट, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. Okay, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, carry 1, 1 plus 1 is 0, and carry is 1. Okay, ultimately you got all the bits as 0. Okay, means if you will subtract any number from the same number, you will get ultimate 0 only by any method. Okay, so 0C minus 0C, you got 0 with carry 1. Here carry flag is set to 1. Okay, so this is the solution for your subtraction. So what is the final value for accumulator you got? In accumulator अब क्या स्टोर हो गया है, 0 0। ठीक है, क्यों, see here, because A minus D परफॉर्म करने के बाद जो भी आएगा, ओके, A minus D परफॉर्म करने के बाद जो भी आएगा सोल्यूशन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। Like the way we did here, A plus A सॉर्ट करने के बाद जो भी आएगा you will have to store in accumulator. Okay, so now you got final value of A as 0 0. Now STA F009. So what is the difference between this LDA and STA? Keep in mind. Okay, ये already मैंने data transfer group में बताया है once again. So उसने बोला STA store the value of accumulator at this given location. A का लास्ट वैल्यू क्या मिला है आपको, 0 0, और लोकेशन क्या है, F009। तो इसका ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटर का जो भी करंट वैल्यू है उसे एट अ पर्टिकुलर लोकेशन जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया है उसमें स्टोर कर दो। तो ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0 0 है, ये 0 0 ये F009 पे स्टोर हो जाएगा। ओके, और LDA का क्या मीनिंग होता है कि जो भी मेमोरी लोकेशन का वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। और STA का क्या मीनिंग है, एक्यूमुलेटर का जो भी वैल्यू है उसको मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। ओके, सो यू कैन सी दैट कि व्हाट वी गॉट फाइनल आंसर ऑफ एवरीथिंग। ओके, हमेशा लास्ट वैल्यू देखना है आपको, भले यहाँ पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू आपको 50 मिला, 06 मिला, 0C मिला, 00 मिला, but the last value of A will be 0 0 only. Okay, and HLT means halt, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, कंपाइलेशन स्टॉप हो रहा है। ओके, सो ये एक इनपुट के बेसिस पे हमने इतने सारे स्टेटमेंट्स कंपाइल किए। ओके, नाउ विल राइट द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज A is equal to 0 0. वी गॉट BC। यहाँ पे क्या पूछा था, BC आपका कहाँ लोकेटेड है, तो BC कहाँ पे है, C009 पे। ओके, C009 पे है, और C009 पे क्या है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू दैट इज 05H।
Okay. Now D is equal to 0CH and F009 is 00. Okay, ये हमें लास्ट वैल्यू मिला. So यहाँ पे क्या है 00. Clear? So these are the things we need to find out for your program. ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई भी प्रोग्राम आया तो आपको इसी पैटर्न में फाइंड आउट करना है. क्लियर? Now the next topic will be the same thing but with different problems. Okay, the toughest means tougher than these two problems. Okay, अब ये प्रॉब्लम का लेवल जो रहेगा वो लेवल बढ़ता जाएगा, टफ लेवल थोड़ा होता जाएगा, जिससे आपको माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगा. ठीक है, इफ यू विल स्टार्ट कंपाइलिंग दिस स्टेप्स बाय योर ओन विथ सम अदर वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा, at least you will come to know that how to compile these steps. जैसे हमने C++ का compiling सीखा है, same way you will able to do this microprocessor programming. Okay, so we'll do again these kind of practice or compilation in our next class also. Till that time, practice these many instructions with compilation, and if you are getting any kind of doubt, please mention through comment or through email. Okay, thank you class.